I come from that trade because we know that trade very well. There have been problems that everything was not coming to this demat account, and I think there are different kind of demat account which was being talked about, and but now they said one single demat account will be able to deal with all kind of asset classes. All kind of asset classes, that is what they are really trying to do. Not only equity shares. Now, I will also be dealing with, I am not dealing with direct tax provisions straight away. I am dealing with other provisions which will have important bearing. For example, FDI, foreign direct investment also. I think for the first time, this bold step has been taken in field of defense, that up to 49%. Defense production will be subjected to, will open, of course it will be under FIPP rule. Similarly, insurance will be up to 49% will be under FIPP rule. And one more debate which was happening as to whether this investment should be always coupled with the technology transfer. Although the detailed notification is expected very soon, because we are actually awaiting for the FDA policy which will come follow, and the detailed notification which will come from Reserve Bank of India in this regard. But the way the consensus is happening is, even if technology transfer is not happening, even in those cases, and even if production is happening, up to 49%, they will allow defense production in India. So a large number of equipment will be able to produce in India itself. Another very important area in case of real estate, where I think all of us will get directly impacted, is we are aware that foreign direct investment in case of real estate is permitted only with a minimum parameter of 50,000 square meters of development. That means 5 lakh square feet कम से कम आपको बनाना है. उसको उन्होंने reduce करके 20,000 स्क्वायर मीटर कर दिया. 2 लाख स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन भी एंटाइटलमेंट ले ली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के. और मिनिमम इन्वेस्टमेंट पहले था कि आप $10 मिलियन कम से कम लाएंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट परमिटेड है. उसको रिड्यूस करके उन्होंने $5 मिलियन कर दिया है. So primarily they want to promote more and more investment into real estate sector to come from outside India. And sorry, I think he's talking on phone. I thought he's asking me. So, but real estate project where they commit as minimum 30% houses, they will go for low cost housing. That means for affordable housing. Of course, there will be criteria which will be announced in detail. In those cases, even these norms of built-up area as well as capitalization, both norms will be withdrawn. This is going to be a very major step, and we see very big impact of this entire exercise in the entire real estate sector. And there is a possibility that a very large amount of development may come through now in terms of low-cost housing. But let us see how far the international investors actually really take interest in this exercise. Manufacturing entities, of course, have been given complete freedom to actually invest into e-commerce area. Through e-commerce, they can actually sell their own products if they are manufacturing their own manufacturing. So no approval will be required even if you are actually investing into e-commerce, provided you are actually selling goods which are manufactured by you. Other e-commerce, still the debate is happening whether e-commerce and retail trading will be permitted or not. As far as retail trading is concerned, BJP has taken a stand in their manifesto that they don't want to permit retail trading in foreign direct investment to retail trading. Similarly for e-commerce, still a debate is going on. Still a lot of people are really trying to really talk about it. Goods and services tax is another area on which an announcement has really come in, wherein the finance minister has made up his mind and has said that he will try and bring a consensus before with the states. There are some states which are accepting, there are some states which are not accepting. But one thing is very clear, which from finance minister presentation is, still the government is not finally decisive of what should be the model. That means they are looking for a good model. And if any one of us, through our own intellect, can really try and develop a model which is acceptable to the state government as well as the central government, because the current models which are being developed have been developed primarily by international consultants based on their international experience. But some of the state governments are not very happy with the current model of dual GST, that is central level GST and the state level GST, and ultimately giving that dispute resolution mechanism in the hands of the central government. The people are not really happy, the state governments are not happy, because they feel that their independence will go away. So maybe whether we can really conceive a single GST
which is administered by state governments. If we are able to create that consensus, I think GST will come and it will of course bring good opportunity to all of us as we move further. In case of transfer pricing, also in the same series of actually giving smootheners, 2-3 very important steps have been taken. One is advanced pricing agreement. What is this advanced pricing agreement? I don't know whether Dr. Rakesh Gupta has discussed this in detail because I came late. Because in case of transfer pricing, what is happening is, you can go to the government, you have a formula between one associated enterprise is dealing with another associated enterprise. You can go to the government and come to an agreement, which is called in advance. You can go to the government and come to the agreement. Suppose I give work to my subsidiary, and if the subsidiary do on cost plus 15% basis or cost plus 20% basis, or in any other manner formula is there based on which we decide our relationship and we deal with our associated enterprise as to whether the government will accept it or not. This matter has already been brought onto the table. But a very big smoother which has come is, suppose you come to an agreement for this year. An option the government want to give that the same agreement can apply to preceding 4 years also. We are aware that there has been tremendous litigation between Indian government as well as international agreement wherever is there, and every year 60-70,000 crores worth of disallowances are happening as far as transfer pricing is concerned. So I am sure a large number of international entities will try and come forward and get into the government and get into advanced pricing arrangement with the government. And suppose the advanced pricing arrangement is agreed for this year, then even for previous 4 years that would be possible. इसके लिए of course concerned authorities को satisfy करना होगा that it is meeting the concerned parameters. वो satisfaction में काफी बड़ी भूमिका हम लोग अदा कर सकते हैं when we are actually representing the SSC to actually satisfy the government that this is a reasonable margin which is being agreed between me and my counterpart and it should be actually allowed. तो उसके लिए हम facts and circumstances पर काफी अच्छे से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम कर सकते हैं और उसके लिए पेपर वर्क तैयार करके उसका बेसिस तैयार कर सकते हैं जिसमें एक काफी अच्छी फीस की संभावना हम लोगों के लिए सबके लिए हो सकती है। आज की डेट में ट्रांसफर प्राइसिंग के जितने केसेस हैं हम नॉर्मली इंटरनेशनल कंपनीज के लिए छोड़ देते हैं कि शायद वही अच्छा कर सकते हैं, और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इंडियन कंसल्टेंट्स आर डूइंग मच बेटर because many times we had chance to review various transfer pricing studies, and I have seen very large amount of transfer pricing studies done by Indian chartered accountants as well as some of the big international companies. I have found that Indian consultants are doing a much better job, a much more qualitative job. और advanced pricing arrangement में तो हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. Another area which of course in transfer pricing again, because this has been a matter of major worry. हमारे बहुत सारे विदेशी क्लाइंट हैं जो यहाँ हिंदुस्तान आने से घबराने लगे थे यहाँ ट्रांसफर प्राइसिंग में पता नहीं क्या होगा, तो उन्होंने कहा एक रेंज कंसेप्ट हम लाएंगे. आज के डेट में तो ये है कि अगर आपका 5% का था पहले, फिर उन्होंने 3% से किया, उतना वेरिएशन है तो आपको सिर्फ उसी केस में वो छोड़ देते थे. But now they want to bring in a range concept. I am sure this range concept will come through rules and various kind of ranges for different kind of arm's length prices will be determined. And if you are within a particular range, then you will be treated as if you are not gone against the law of the land. That is what they propose to do. The third area in transfer pricing, which they have actually given as a smoother, is that currently we are able to compare data only of 1 year. हमने जब हम एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उससे पिछले साल के सिर्फ डाटा हम लोग कंपेयर कर पाते थे. करंट ईयर का डाटा तो मिलता ही नहीं किसी का, कई बार पिछले साल का डाटा भी नहीं मिलता, और हो सकता है उससे पिछले सालों का डाटा मिल जाए. तो सरकार ने कहा कि इवन इफ आपको मान लिया पिछले साल का डाटा नहीं मिलता एक साल का, उसके पीछे के सालों में भी आप जा सकते हैं. एंड द गवर्नमेंट, यू कैन कन्विंस द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द प्रीवियस डाटा. ये सारी एक्सरसाइज हो रही है किस लिए कि ट्रांसफर प्राइसिंग की जो हाई पिच असेसमेंट हो रही थी, जिससे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स घबराए हुए थे, उसको एक विराम मिले और हम जो इन्वेस्टर है उसको एक रीजनेबल ट्रीटमेंट मिले कम से कम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से. ऐसी संभावना में लगता है उस तरफ हम जा रहे हैं. आपको याद है इन केस ऑफ बर्मा शेल तो गवर्नमेंट का जो असेसिंग ऑफिसर उन्होंने हद ही कर दी, बिकॉज दिस मैन बर्मा शेल एक्चुअली ब्रॉट इन
कैपिटल इन्फ्यूजन उन्होंने किया, उन्होंने कैपिटल इन्फ्यूजन किया 10 रुपए का शेयर 10 रुपए के भाव से। उन्होंने कहा नहीं आपने 10 रुपए का भाव 10 रुपए से गलत किया, ये तो आपको 150 रुपए में लाना चाहिए था। तो आपने ये जो पैसा जो बीच में बनाया आपने 10 रुपए में ले लिया, शेयर सस्ते में ले लिया आपने, शेयर आपको 150 रुपए में मिलना चाहिए था, इसका सही प्राइस 150 रुपए होना चाहिए, ऐसा उन्होंने असेस किया और कई हजार करोड़ रुपए की उन्होंने डिमांड उनके लोग निकाला। तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर दूध के धुले हैं, बट हमें वी हैव टू बी रीजनेबल विद whosoever comes to India, and if we try to be unreasonable, किसी आदमी में कैपिटल इन्फ्यूजन है उसे आप इनकम ट्रीट करके कई हजार करोड़ की डिमांड निकाल दें, इट विल हैव सीवियर इम्पैक्ट ऑन आवर ओन इकोनॉमी एंड बिजनेसेस। एक और बहुत सोर एरिया बहुत सालों से चल रहा था which was related to section 73 explanation। मेरे को लगता है शायद डॉक्टर लोकेश गुप्ता ने उसे अभी हैंडल नहीं किया, I was sitting here not handled this। Section 73 explanation is a deeming provision। What this deeming provision was talking about is, in case your principal business is not banking business and your income is only, you are not into business, suppose you get into buying and selling of shares and you incur some loss or profit, if you are a company, they were deeming as if all this business loss or profit is from a speculative, there was a speculative deeming provision. For several years, I remember for the last 15 years plus we have been taking up with the government that in those cases where the SSC is in the business of trading of shares itself, for example stockbrokers, or there are companies which are actually उनका काम ही है buying and selling of shares। अब जिसका काम ही बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स है उसके केस में आपको कम से कम इस डीमिंग प्रोविजन को नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज ये वे बैक आया डीमिंग प्रोविजन ऑन दैट बेसिस, क्योंकि लोग अपने बिजनेस इनकम को कम करने के लिए बाजार से प्रॉफिट या लॉस ले लेते थे, तो उसको उन्होंने कहा कि इसको आप डीमिंग प्रोविजन के थ्रू स्पेकुलेटिव करार देते। लेकिन आज ये ट्रेवल्ड ए लॉन्ग वे, all the transactions are done now in a unique client code, and there are several kind of checks and balances which have really come in now. Although it is not that now manipulation is not happening, it is not that people are not misusing this, but what they are saying is, if in case your principal business is trading in shares, in those cases this explanation will not apply। That means if your principal business is not trading in shares, then this explanation will still apply, because उस केसेस में they do not want कि आपने बाजार से डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन बुक किया और उसके बेस पे आपने लॉस बुक कर लिया और आपने अपना बिजनेस प्रॉफिट कम कर दिया। ऑब्वियसली गवर्नमेंट इस बात को बढ़ावा नहीं देना चाहती, इसीलिए उसको स्पेकुलेटिव बिजनेस का आप करार देना चाहते हैं। बजट में क्या है? सेक्शन 73 एक्सप्लेनेशन मैंने बताया ना बजट में, सॉरी मेरी बात शायद आप तक पहुंची नहीं। पहले सब कंपनीज के ऊपर प्रोविजन अप्लाई होता था, एक्सेप्ट दोस कंपनीज व्हिच आर इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग और लेंडिंग मनी। पर अब उन्होंने ये एक्सटेंड कर दिया है, ये एग्जेम्पशन को बढ़ा दिया है कि जिस कंपनी का बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स होगा, प्रिंसिपल बिजनेस, उनको भी ये प्रोविजन अप्लाई नहीं करें। ये बहुत मेजर चेंज है। शायद जितने भी आपके क्लाइंट जो शेयर ब्रोकिंग का काम करते हैं या जो शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं, जिनका काम ही प्रिंसिपल बिजनेस शेयर ट्रेडिंग का है, उनके लिए बहुत स्वीटनर है उनके यहाँ पे दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज स्पेकुलेटिव। क्योंकि आज की केस में दिस वाज बिकमिंग अ बिग इशू व्हेन समबडी वाज डूइंग आर्बिट्रेज बिजनेस। क्योंकि आर्बिट्रेज में क्या हुआ, देयर पीपल हु वर डूइंग आर्बिट्रेज बिटवीन कैश बिजनेस एंड डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स को हो गया था नॉन स्पेकुलेटिव बिकॉज ऑफ स्पेशल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43(5). If you do it on a recognized stock exchange, then the derivative business was exempted. But if the cash transaction was being treated as speculative, so it was becoming a big issue between people who wanted to do arbitrage business. उनके लिए काफी बड़ा इशू था। और generally also if you get into buying and selling of shares, if you incur a loss, it was becoming an issue. So इसको हटा दिया उन्होंने। कुछ if there is some repetition, please pardon me. I will try not to cover areas that Dr. Rakesh Gupta has covered, but I am only trying to cover. मैं इसीलिए आपसे पूछता रहूँगा जो उन्होंने कवर नहीं किया। I am trying to cover only those areas. एक 150% की जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की उन्होंने ये जो एडिशनल जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिडक्शन लिंक्ड स्कीम निकली है, उसमें स्लरी पाइपलाइन
और सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन को भी उन्होंने अलाउ किया है। उसमें जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आप करेंगे उसमें उसका 100% रिडक्शन मिलेगा, जो बाकियों में पहले बाकी पाइपलाइन वगैरह में था। और स्लरी पाइपलाइन में, स्लरी पाइपलाइन, व्हाट इज स्लरी पाइपलाइन? आप आयरन ओर जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जो पाइपलाइन लगाते हैं उसको स्लरी पाइपलाइन बोलते हैं। तो ये दिस विल ऑफ कोर्स हेल्प प्राइमरली दोज पीपल हु आर इन द बिजनेस ऑफ स्टील मेकिंग, because that entire piping which is done from one place to another, that will be entire capital expenditure will be considered as revenue expenditure and 100% reduction will happen. Semiconductor wafer is advanced technology, but it is primarily related to information technology business and hardware of information technology. This will actually improve significantly. So जो भी capital expenditure होगा semiconductor के लिए, क्योंकि उसमें high end इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स की प्रोडक्शन होती है, इसीलिए सरकार ने उसके ऊपर ये बेनिफिट दिया है 100% रिडक्शन। मैं से डिविडेंड वाला तो डॉक्टर साहब ने कर लिया होगा कि 15% डिविडेंड जो टैक्सेशन है उसकी सनसेट क्लॉज को हटा दिया गया है। डबल ए का प्रोविजन कवर नहीं किया। देखिए 12 डबल ए में तो सिंपल प्रोविजन यही आया कि अगर यू आर ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और आपने 12 डबल ए का रजिस्ट्रेशन इस साल ले लिया तो ये पिछले सालों पर भी अप्लाई हो जाएगा। अभी आज के डेट में होता था कि आपका चैरिटेबल ट्रस्ट चल रहा है, आप गए डिपार्टमेंट के पास, बीच में कई साल से चल रहा है, आपने इस साल रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेकिन पिछले सालों के सारे केसेस डिपार्टमेंट सेक्शन 147 रेलवे सेक्शन 148 खोल लेता था। तो सरकार ने कहा हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। एक बार अगर आपको इस बार मान्यता करार दे दी गई तो दिस विल अप्लाई इवन फॉर प्रीसीडिंग ईयर्स, और आपका 148 में असेसमेंट नहीं खुलेगा। सिर्फ एक उन्होंने एक्सेप्शन किया, इन केस आपको पहले 12 डबल ए का रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज कर दिया या फिर आपका कैंसिल कर देगा रजिस्ट्रेशन, वो तो फिर डिफरेंट चीज होगी कि आपने कुछ ऐसा गलत काम किया था जिसकी वजह से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता, उस केस में ये अप्लाई नहीं होगा पिछले सालों पर, बट सारे जेन्युइन केसेस में डेफिनेटली अप्लाई होगा। मैं सर पूछ लूंगा जो भी कुछ अगर होगा। और Don't you think this amendment has been made in light of the recent issue in relation to the National Herald, National Herald, the deal with the Congress Party and some of the trusts? मेरे को लगता नहीं कि कांग्रेस को कुछ खास बेनिफिट देने के लिए ऐसा कुछ किया गया है। It is not to give the benefit, but to trap them more effectively by the department. Trap them? Yeah. I really don't think so. They will be trapped in this. What trapping in National Herald actually? National Herald is a very different case. वो काफी politically motivated issues हैं उसमें, इसलिए उसको डिस्कस हमें प्रोफेशनल फोरम पे करना जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी उन्हें ये पता कि हाँ भी क्या नेशनल हेराल्ड ठीक है, कांग्रेस पार्टी ठीक है या सुब्रमण्यम स्वामी ठीक है, हमें मालूम नहीं इस बारे में, क्योंकि इस लिटिगेशन में हम पढ़ना नहीं चाहते, फैक्ट्स हमें ठीक से मालूम नहीं है कि उन्होंने क्या किया, क्यों किया। उनका प्राइमरी जितना हमें समझ में आया न्यूज़पेपर पर, यही समझ में आया कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ पैसा एडवांस में दिया जिससे उन्होंने उसके नेशनल हेराल्ड की जो डेट थी उनको रिटायर कर दिया। ऐसा कुछ उनका एलिगेशन है कि कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के फंड्स का कुछ मिसयूज हो गया। That they have covered in this amendment, because previously the cancellation of registration under section 12AA was based on the non-carrying the non-charitable activities, but now they have also covered via the amendment कि उसमें यदि transfer of directly or indirectly transfer of the assets is involved। मेरे को फिर भी लगता है नेशनल हेराल्ड केस में अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस पार्टी की एग्जम्पशन है, 12 डबल ए में नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी की है, वो पॉलिटिकल पार्टी को अलग से एग्जम्पशन है। और इस देश में कोई भी जुडिशरी या आम आदमी लाइक नहीं करता कि पॉलिटिक्स को लिटिगेशन के थ्रू सेटल किया जाए। पॉलिटिक्स और लिटिगेशन दोनों को अलग अलग रखना चाहिए, और हमने 3-4 साल बहुत भुगत लिया है लिटिगेशन, 2G स्कैम, दिस स्कैम, दैट स्कैम, दुनिया भर की लिटिगेशन हुई है जिसकी वजह से पूरा व्यापार ही रुक गया। तो हमारा तो सोचना ये है पर्सनली कि इस लिटिगेशन से जितना दूर रखा जाए देश को उतना अच्छा। कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी को वो नोटिस इशू करा रहे हैं, तो हमारे हिसाब से कम मैं अप्रिशिएट नहीं करता उस चीज़ को पर्सनली, क्योंकि पॉलिटिकल लोगों को अननेसेसरी कोर्ट कचहरी में घसीटने से होता कुछ नहीं, हासिल कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली एक माहौल सिर्फ खराब होता है आपस में कि क्या देश में कि क्या चल रहा है, माहौल सारा ही खराब होता है। एक सेक्शन 54 EC उन्होंने शायद कवर कर ही दिया होगा ऑलरेडी, 50 लाख लिमिट कर दिया, 54 भी उन्होंने कवर कर दिया होगा।
54F नहीं कवर किया। 54F में तो बेसिकली प्रोविजन ये आया कि अगर आप एक हाउस ही खरीद सकते हैं, 2 हाउसेज नहीं खरीदेंगे। पहले जो डिवाइडेड जजमेंट था कि 2 हाउसेज भी खरीदे तो शायद आपको उसका बेनिफिट मिल जाए, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि सिंगल हाउस ही होगा, तो सब लिटिगेशन कम करने की तरफ है। देखिए मेरे को ऐसा लगता है ये तो कोर्ट से डिसाइड करेंगे, लेकिन अगर ये ऐसी अमेंडमेंट आती है उस केस में उन लोगों को मेरे हिसाब से फायदा ही हो जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट खत्म कर ही रहे हैं। अगर सरकार ये 1 का 2 3 भी कर दें तो इनको क्या फर्क पड़ता है। ये तो बेसिकली ये सेक्शन जो था, ये जो हाउसिंग को प्रमोट करने के लिए किया गया था, आप मकान बेच के सारा पैसा यूज ना कर लें, आप नया मकान ले लें। तो अगर बड़ी फैमिली है उसमें 1 2 3 मकान ले भी लेते हैं, ये तो गवर्नमेंट के पास अभी तो ये केस ओपन मल्टीपल फ्लोर की बात है, रेजिडेंशियल यूनिट की बात है, सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट विच कुड बी मल्टीपल फ्लोर्स आल्सो, इट डिपेंड्स। मैं तो आज मेरे पास पैसा आता है, ज़्यादा पैसा आता है, मैं 4 मकान ले लेता हूँ। दैट विल प्रमोट हाउसिंग, दैट विल प्रमोट लॉट ऑफ इकोनॉमी। आप सिर्फ एक ही एंगल से देख रहे हैं, मेरे को लगता नहीं 54F हाउसिंग को प्रमोट करने के लिए था, वो इलेक्ट्रिसिटी तो हाउसिंग के लिए था। मेरा सोचना थोड़ा सा डिफरेंट है आपसे। मेरे को ऐसा लगता है 54F इज प्राइमरली कि हाँ भी और हाउसिंग तो प्रमोट होगा, बट हाउसिंग में कैपिटल सिंगल हाउस प्रमोट होगा। ये ओरिजिनल इंटेंशन सिंगल हाउस के था, डेफिनेटली सिंगल हाउस के था। Sometimes when the family enlarge, then the person need to buy more than the one houses. So in that case, I don't think this. देखिए उसका तो तरीका डिफरेंट है। अगर आपकी फैमिली वास्तव में enlarge हो रही है तो बेचने से पहले आप प्लान कर सकते हैं। आप बेचने से पहले तो प्लान कर ही सकते हैं ना। मान लीजिए आपकी बड़ी फैमिली है, फादर के नाम में मकान है, बच्चों को भी वो देना चाहते हैं, तो पहले आप उनको शेयर होल्डर बना लीजिए उसमें मकान में बेचने से पहले, और फिर सबके नाम में अलग अलग खरीद लीजिए, कौन रोक रहा है। आई थिंक बड़ा सिंपल है रास्ता। लेकिन ये होल्डिंग करते हैं जब मकानों में उनके लिए नहीं फिट हो रहा है, प्लीज अप्रिशिएट। आपका प्रोविजन कौन दोनों तरफ से? हाँ, दोनों तरफ है सर। ना है ठीक है सर। सर एक विदेश जैसा कॉन्सेप्ट आया था उसमें बिजनेस ट्रस्ट का मैं समझा रहा हूँ सर। बिजनेस ट्रस्ट ना, देखिए बिजनेस ट्रस्ट में वो कह रहे हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की 2 तरीके की ब्रीड वो अलाउ कर रहे हैं। अगर यहाँ पे से होता तो मैं आपको ठीक से समझाता, क्योंकि दिस इज माय वेरी सब्जेक्ट वेरी डियर टू माय हार्ट। देखिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा पावरफुल सोर्स माना जाता है रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए। सरकार बहुत साल से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यहाँ लाना चाहती है, लेकिन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के माध्यम से बनाता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर में वो चीज़ अप्लाई करेंगे। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, रियल एस्टेट बताता हूँ। उन्होंने क्या कहा कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट विल एक्ट एज ए पास थ्रू व्हीकल। पास थ्रू व्हीकल का क्या मतलब, सब चार्टर्ड अकाउंटेंट 2 मिनट में समझ जाएंगे इस बात को। जब तक समझाई नहीं जाती, जब तक ये ऐसा लगता है पता नहीं क्या कॉम्प्लेक्स चीज है, समझाने के बाद बहुत सिंपल हो जाएगा हर आदमी। मान लिया आपने ट्रस्ट बनाया विच इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब हम लोग जितने ही यहाँ बैठे हैं, 30-35 लोग हैं, हम सबने 50-50 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए उस ट्रस्ट में लगा दिए, तो 30 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट 30 लोगों ने मिलकर कर दी। अब अगर आप मिलके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज के रेट में मैक्सिमम मार्जिनल रेट पर टैक्सेशन होता है, बिकॉज दिस इज ए बिजनेस ट्रस्ट। इवन इफ इट इज ए स्पेसिफिक ट्रस्ट, इट विल टैक्स एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट। तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स लगे ट्रस्ट के हाथ में, और फिर इंडिविजुअल्स के हाथ में जो पैसा है उस पर टैक्स नहीं लगता। तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट पर कोई आदमी टैक्स देना नहीं चाहता, क्योंकि हर आदमी का अपनी प्लानिंग है। तो इन्होंने क्या कहा, इसे पास थ्रू व्हीकल कर दिया। इसका मतलब अगर हम सब लोग मिलके एक ऐसा ट्रस्ट बनाएं जो इसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट करें और मिलके इन्वेस्टमेंट करें हम सब लोगों ने, सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस ऑफ सेबी एटसेट्रा में रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना पड़ेगा, और लिस्टिंग की भी कुछ इसमें रिक्वायरमेंट डाली है उन्होंने कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की यूनिट को हम लिस्ट करा देंगे। तो उस केस में क्या उन्होंने कहा, पास थ्रू व्हीकल हो जाएगा। इसका मतलब सपोज मैं एक बिजनेस एंटिटी, सपोज आई एम रियल एस्टेट इन्वेस्टर, आप सब लोगों ने पैसा मुझे दिया, मैंने इन्वेस्ट किया एज ए ट्रस्ट इसको रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, मैं इक्विटी में भी लगा सकता हूँ, मैं उसे लोन में भी लगा सकता हूँ, मैं डायरेक्टली रियल एस्टेट में लगा कर रेंट भी रिसीव कर सकता हूँ। ठीक है ना, कई सारे कॉम्बिनेशन है। मान लिया अगर रेंट आता है उससे प्रॉपर्टी से, तो मेरे हाथ में मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स हो रहा था। लेकिन अगर मान लिया आपने 100वां हिस्सा लगाया है और मेरे पास 1 करोड़ रुपए का रेंट आया, तो आपके हाथ में 1 लाख रुपए का रेंट रिसीव होगा। तो आपके हाथ में इनकम और हाउस प्रॉपर्टी के तौर पर वो एसेस होगा। सबके हाथ में रेस्पेक्टिव, किसी ने 2% शेयर लिया, किसी ने 5% शेयर लिया, तो आपको उसी हिसाब से उसकी डिडक्शन
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डेप्रिसिएशन की भी मिल जाएगी, और जो भी आपने अगर उसके लिए कुछ बोरो किया तो उसके रिडक्शन भी मिल जाएगा। सिंपल हो गया सर। आपने अगर उसे इक्विटी में इन्वेस्ट किया है तो अगर उस इक्विटी के बेचने से कोई कैपिटल गेन होता है तो ट्रस्ट के हाथ में कैपिटल गेन जो है वो ट्रस्ट के हाथ में जो पास थ्रू व्हीकल है इंडिविजुअल लोगों के हाथ में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत उम्दा काम किया ऑस्ट्रेलिया में ट्रस्ट की एग्जैक्टली यही ट्रीटमेंट है। ट्रस्ट की जो भी इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है उसके कंपोनेंट्स होते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में ऐसे है सर, हमारे देश में नहीं है सर, पूरे वर्ल्ड में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पूरे यूरोप में, अमेरिका में सब जगह बहुत पॉपुलर है। लेकिन यहाँ पर कोई प्रावधान सरकार का मन नहीं था खुलने का, सरकार को लग रहा था पता नहीं कुछ मिसयूज ना हो जाए, पर सरकार ने अब शायद कोशिश करे, लेट अस सी, अगर मिसयूज नहीं होगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छा चलेगा। टैक्स लायबिलिटी वेरी हो। और अगर आपने लोन दिया, देखिए इस बात को सुनना बहुत जरूरी है, अगर आपने लोन दिया उसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बुक्स में से आपने लोन दिया तो उसमें ब्याज आएगा ट्रस्ट के हाथ में। तो उन्होंने कहा कि जो आदमी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से उधार लेगा वो टीडीएस नहीं काटेगा, he will not deduct any withholding tax. Withholding tax will be deducted by the trust. ट्रस्ट जब आपको वो ब्याज देगा, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, तो अगर उस पर टैक्स आपके लेवल पे कटता होगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर लिमिट, तब तो काटेगा, नहीं तो नहीं काटेगा। ठीक है सर। तो देखिए कितना सिंपल काम हो गया, ये ट्रस्ट बन गया, व्हीकल भी बन गया, आपने मिलकर इन्वेस्टमेंट भी कर दिया। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ऐसा हो गया एज इफ आप इंडिविजुअली कर रहे हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भाइयों के लिए तो बहुत सुनहरी मौका है। हम में से जो भी एंटरप्रेन्योर काइंड के आदमी हैं उनको ऐसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाने चाहिए, और हमारे जैसे लोगों को प्रेरित करना चाहिए, हम उनको उनका भरोसा करके उस पैसे को उनको दें और वो आगे लगाएं। क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उनकी कॉस्ट ऑफ एक्चुअली क्रिएटिंग दिस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या उसको रन करने की कॉस्ट में बहुत ज़्यादा नहीं होगी। हम में से अगर किसी का कोई मन हो इसको करने का और उस बात को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प एंड गाइड इन दिस प्रोसेस, क्योंकि हमारे काफी आइडियाज काम को कैसे किया जा सकता है। लाइक ए बिल्डर, देखिए वो अभी सेबी की गाइडलाइंस आएंगी, इस बारे में ये साइलेंट है, बट लाइक ए बिल्डर दे विल आल्सो बी एबल टू डेवलप रियल एस्टेट। जब किराए पर दे सकते हैं खरीद के तो बिल्ड भी कर सकते हैं, बड़ी बड़ी रियल एस्टेट डेवलप कर सकते हैं। वो तो कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए। मान लिया सपोज यहाँ से दिल्ली से लेकर बॉम्बे तक का हाईवे बनना है, उस हाईवे का एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बन जाए, हम सब लोग मिलके चार्टर्ड अकाउंट में दिल्ली के जितने सबके हम तो पैसा लगा देते हैं इसमें, हम सब लगाएंगे, हम लाख लाख रुपए हम सब लगा देंगे और हमें प्रोपोर्शनेट गेन उसका मिलना चाहिए। नहीं, कंपनीज बंद करके ट्रस्ट नहीं बनाएंगे, इतना आसान नहीं है सर। देखिए उसमें क्या है कि वो सारा पैसा लोगों के लिए नहीं कमाना चाहेंगे तो ट्रस्ट बनाएंगे, और सारा पैसा अपने लिए कमाना चाहेंगे तो कंपनियां बनाएंगे। इजंट इट? अल्टीमेटली ये बात है, और उसकी डिटेल गाइडलाइंस अभी सेबी से आने वाली है। किसी को और कुछ पूछना है सर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में? दिल्ली में सर जो आर-जोन बन रहे हैं उसमें भी काम आता है, उसमें बहुत काम आएगा। दिल्ली में जो नजरगढ़ के पास ये एरिया में लोग वो कलेक्शन ऑफ लैंड की स्कीम कर रहे हैं, उसमें ये रीड्स कैन रियली वर्क वेरी वेल। सर वो डिफरेंट है असल में, एक्चुअली इट इज नॉट द सेम थिंग। देखिए ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को लिमिटेशन है कि वो डायरेक्टली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, वो किसी बिजनेस में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकता, उसे तो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना सर। इट कैन ओनली बाय सिक्योरिटीज। ये मेजर फर्क है सर, ये मेजर फर्क है। ये डायरेक्ट कर सकता है, लोन भी दे सकता है, इक्विटी भी लगा सकता है, डायरेक्टली एसेट भी खरीद सकता है। ऐसी हमारी एक्सपेक्टेशन है सरकार से कि रूल्स ऐसे आएंगे। जैसे एआईएफ में 1 करोड़ मिनिमम पर इन्वेस्टर की ऐसी कुछ लिमिट इसमें भी आएगी, लेकिन कितने साइज का निर्भर करता है। मेरे को लगता है 1 करोड़ का हो सकता है, 50 लाख का हो सकता है, 25 लाख का है। अगर सरकार सिर्फ कुछ लिमिटेड लोगों को फायदा देना चाहेगी तो लिमिट हाई आएगी। शुरू में हो सकता है हाई लिमिट लगा के सरकार टेस्ट करे इस बात को क्या ठीक चल रहा है, तब नीचे करे। क्योंकि देखिए इसमें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में छोटा सा रिस्क भी है, उस रिस्क को हमें समझ लेना चाहिए कि रियल एस्टेट हमें पता है इसमें कच्चे के पैसे का बहुत फालतू भाव है। ठीक है ना जी, आपने सबने मिलकर पैसा इकट्ठा किया, जो आदमी मैनेज कर रहा है उस ट्रस्ट को, अब उसमें 2 नंबर के पैसे का क्या करेगा? 2 नंबर में इनकम भी आती है कई बार, 2 नंबर में खर्चा भी होता है कई बार, 2 नंबर में आप लोग लैंड भी खरीदते हैं। तो ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट विल गेट लिमिटेड एंटायरली टू, कोई बात नहीं सर, लोग कर ही रहे हैं।
मैं कोई ऐसी गलत बात नहीं कर रहा, लोग करते ही है ना सर, लेकिन हम उसे प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं। हम उसके बारे में बता रहे हैं कि एक हिंड्रेंस है, एक रिस्क है कि जहाँ पर भी कैश का जिस ट्रेड में होता है तो नेचुरली भरोसा करने में लोगों को तकलीफ होगी आराम से। तो अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को भरोसा चाहिएगा तो उन्हें डेफिनेटली इस काम को ट्रांसपेरेंटली करना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग कैसे जुड़ेंगे सब लोग मिलकर? मान लिया हम 30 लोग भी जुड़ना चाहते हैं, मान लिया उत्तर जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत